नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं दमन न्यूज। दमन न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। दमन में पूर्व सांसद रह चुके दयाभाई पटेल का बीज बिल 2 करोड़ जितना भरना बाकी हो, भाजपा ने इस मामले को लेकर पत्रकार परिषद का किया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन में इतिहास में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया था भव्य आयोजन। पाडी कोटलाव में बरसों से रहते एक अनजाने वृद्ध की हुई मौत। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमन के पूर्व सांसद रह चुके दयाभाई पटेल का बीज बिल 2 करोड़ 16 लाख का भरना बाकी हो, इस मामले को लेकर भाजपा कार्यालय पर पत्रकार परिषद का किया गया था आयोजन। दमन भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और भाजपा के नए नियुक्त स्पोक पर्सन विशाल टंडेल, BM माछी और तुषार दलाल की उपस्थिति में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। परिषद में जिस तरह से दमन दीव के पूर्व कांग्रेसी सांसद दयाभाई पटेल का 2 करोड़ 16 लाख जितना बीज बिल भरना बाकी हो, उसको देख के लगता है कि यह मामला निंदनीय है। जो गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति है वो लोग भी बीज बिल भर देते हैं, तो फिर पूर्व सांसद क्यों नहीं भर सकते? तो इस मामले पर पूर्व सांसद रह चुके दयाभाई पटेल इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं भर के टुकड़ों टुकड़ों में भर के सरकार का पैसा चुका दे, ऐसा बताया गया था। इसके साथ दमन दीव कांग्रेसी पार्टी के अध्यक्ष केतन भाई पटेल भी इस मामले में जनता के सामने आए और सत्य हकीकत क्या है और उसके बारे में बताए, ऐसी भाजपा पार्टी द्वारा मांग की गई है। दमन दीव प्रशासक श्री पप्पूभाई पटेल અને એમની ટીમ જે બકાયદા ઇલેક્ટ્રિસિટીની જે રકમ નીકળતી છે એમાં જે 19 જેટલા ઈસમો છે જે વીજળીનું બિલ 10 કરોડથી ઉપર બાકી છે, જેના અનુસંધાનમાં गत काल रोज ये एक्शन लेवानुं शरू कर्युं छे अने एमां प्रथम जाणवा मळ्युं छे कि श्री कांग्रेसना 2 टर्मना सांसद दयाभाई पटेल जो 2 करोड़ અને 16 लाख रुपयाना बाकी लेना जे નીકળે છે એને પ્રશાસન તરફથી એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી બાકાયદા નોટિસ આપવામાં આવી છે અને એવું પણ કહેવાય છે કે આ બાકી નીકળતા નાણાં 2 કરોડ ને 16 લાખ રૂપિયા જો નહીં ભરે એટલે જેટલી બની શકે એટલી જલ્દી, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी ना कायदा 135 तहत एना पर गुना पण दाखल थी सके एम छे। तो आज दयाभाई पटेल आज कांग्रेसना एक 2 टर्म MP जेओ एटलू आज दाभलनी अंदर के दमणनी अंदर वर्चस्व धराववानो माणस અને જેમને આ સરકારની બાકી રકમ નીકળતી હોય અને એ નહીં ભરી શકતા હોય તો જે પ્રશાસન એક્શન લેશે તો એમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી અમે એક ખાસ અપીલ કરીએ છીએ કે સરકાર આજે સ્વચ્છ અને सारू काम करी रही है कि भारतीय जनता पार्टी आवनार दिवसों में नरेंद्र मोदी नेतृत्व में आ सरकार में कोईपण बाकी होय अथवा तो कोईपण जातनी गैररीति चलावती होय कि कोईपण जातना मतलब में कोईना बाकी लेना होय तो एमां सख्ताईथी वर्तशे अने
ટૂંક સમયની અંદર આ જે 19 જેટલા કરદાતાઓ છે એ બધાને નોટિસ પાઠવી અને પૈસા ભરવાનું કહેશે અને નહીં ભરે તો એના પર 135 તહત ઇલેક્ટ્રિકના એક્શન પણ લઈ શકશે. જ્યારે પ્રફુલભાઈ પટેલ એડમિટરશ્રી એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જે ડિપાર્ટમેન્ટને કામ સોંપ્યું, કાલે મિટિંગો હતી અને જે ઘણા મોટા માથા ઘણા પૈસાઓને બિલો બાકી છે તે ભરી દે જલ્દીમાં જલ્દી. રેવન્યુ આવે તો ભારત સરકારને કામમાં વિકાસ માટે એ સરકારના પૈસા છે, આપણા પૈસા નથી. કારણ કે લાઇટ વગર ચાલતું જ નથી. આપણે સેકન્ડ મિનિટ ચાલે લાઇટ વગર, ખાવા પીવા વગર બધું ચાલે, કપડાં લતા વગર ચાલશે, વ્હીકલ વગર બી ચાલશે, વોકિંગ બી કરીશું, પણ લાઇટ વગર નહીં ચાલે. એટલે આપણે જાતે સમજીને જ આપણે બિલ ભરવું જોઈએ. આટલી બધી રકમ નહીં ભરવામાં તો પ્રશાસન અપીલ કરે કે થોડો ઓનલાઈન હપ્તો કરી આપે બધાને, કે ઘણા દમણમાં પૈસાઓ છે પણ નાના વ્યક્તિ પાસે બી ઘણા મોટો પ્રોબ્લેમ છે. જે નાના જે રોજીરોટી કમાઈને ખાય એવા SC/ST કે ગરીબ પરિવાર ઘણા એના બી બિલો વધી ગયેલા છે. તો એમને બી જે હપ્તા સિસ્ટમ કરી આપે તો નાણાં જલ્દી ભેગા થાય. અને આપણી પારદર્શક સરકાર, ચોખ્ખી સરકાર, ખરેખર આ તો લાઇટ બિલ આપણે ભરવું જ જોઈએ, કમ્પલસરી દરેક ભરવું જોઈએ આપણે. અને બીજી બાજુ કે એમનો દીકરો શ્રી કેતનભાઈ પટેલ કોંગ્રેસ પ્રમુખ, એમના કાલે મને બી 2-3 જગ્યાએથી ફોન આવ્યા હતા. એના બી લગભગ આ લખેલું છે કે હપ્તા વસૂલી માટે એના માણસો રાખેલા, એનાથી ઓર્ડર થઈ જાય કે મારા માણસે કે તમારા ઓર્ડર સિવાય કોઈ કામ થતું નથી. તો બીજાના પણ કીચડ ઉઠાડે, પોતાના ઘરમાં જો કે આ બધી સારોને સ્વભાવી નહીં આપે કે ઉદ્યોગ અને આપણે સાથે મળીને ચાલવું જોઈએ. જે ઉદ્યોગ કેમ આવે, શાંતિનો માહોલ છે એટલા માટે બધા દમણ આવ્યા છે. તો એ લોકોને બી આપણી ફરજ કે સહયોગ આપવાની, સાચવવાની, બે હાથે તાળી વાળી. તો આજે ઘણીવાર આના કેતન પટેલના જે આજે આ કરતૂતો બહાર આવ્યા, હપ્તા વસૂલી, કોઈ બોલતા નહીં હતા, પણ ફેક્ટરીવાળાની હિંમત આવી અત્યારે કેસ કરવાની. તો ફેક્ટરીવાળાને અભિનંદન કે દબાઈને જીવવાનું નહીં, કોઈ દબાઈને જીવવાનું નહીં. અમે બધા બેસેલા છે, દરેક સાથે અમે છે. આ ગેરંટી ચાલવાની નહીં. કેતનભાઈ પટેલ બીજાના માટે કીચડ ઉઠાડે, આજે પોતાના ઘરમાં કીચડ આવ્યું. આ નાના મોટી ફેક્ટરીવાળા દમણની અંદર અમારો પૂરો સહયોગ છે, જનતાનો છે, અમારો તો બી સહયોગ અને ફેક્ટરીવાળાને બી, ઉદ્યોગને બી. કારણ કે બંને વગર ચાલો નથી, પણ વધારે પડતું આ નહીં ચાલે, આ સારું ના કહેવાય. અને આજે અમને તો ખબર નહીં હતી, પેપરો બધા જોયા હતા પેપરમાં સવારે, તો અમે વિચાર કર્યો કે ચાલો બેસીને અમે મીટિંગ બોલાવી લીધી દાદાના અધ્યક્ષ, અમારા गोपालभाईना अध्यक्षता मैं तो सर हाथों में उसको बिठाकर सर पर उठाकर उसकी पार्टी की निष्ठापूर्वक सेवा करूंगा. मैं खास करके आज सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ. हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सांसद श्री ने आपको बता ही दिया कि इस विषय में यहाँ पर ये प्रेस वार्ता हम कर रहे हैं. बड़ी दुख की बात है कि आज जब अखबार में हमने पढ़ा कि दमन दीव के पूर्व सांसद डायभाई पटेल, उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बकाया है करीबन 2 करोड़ और 16 लाख रुपया है, जिसमें उनका निजी घर मकान का भी आ गया, एग्रीकल्चर का भी आ गया और कुछ कमर्शियल भी आ गया. बड़े ही ये दुख की बात है कि इतने वरिष्ठ यहाँ के नेता जिन्होंने 10 साल तक यहाँ पर हमारे दमन और दीव में सांसद के रूप में उन्होंने कार्यभार किया और उन्हीं के घर का इतना बड़ा बकाया सरकारी बाकी. आज दमन और दीव की जनता उनको आज सवाल पूछ रही है. मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि डायभाई पटेल का पुत्र जो आज प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष केतन पटेल, वो भी वहां पर ही रहता है, उसी मकान में रहता है, वहां से उनकी भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है. केतन पटेल भी आकर इस मामले में बताए हमें कि इतना सारा पैसा बकाया बाकी रखा है, उसका उन्हें क्या कहना है. आज दमन और दीव की जनता को अलग अलग आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे सांसद को, हमारी पार्टी को अलग अलग बातों में उन्होंने घेरने की पूरी कोशिश की. काफी सारे हमारे पे आक्षेप लगाए, लेकिन आज जब इलेक्ट्रिसिटी विभाग दमन और दीव ने उनके घर पे छापा डालकर उनका जो भी बकाया निकाला, उसके बारे में एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी आखिर जनता का जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हो गया. दमन में जब इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ते थे तब आम जनता सड़क पर उतरकर उस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को कम कराने की पूरी कोशिश की. प्राइवेटाइजेशन के लिए हमने लड़त दी, लेकिन आज जब ये मामला बाहर आया तब हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ जो दमन की इलेक्ट्रिसिटी विभाग
जो है उनके साथ बनी रही है। आज दमन और दीव की आम जनता ने हर हमें विरोध किया कि हम प्राइवेटाइजेशन कभी नहीं होने देंगे, तभी भी सड़कों पर आम जनता उतरी थी, उन्होंने भी कभी भूमिका निभाई होगी, हमें इसका पता नहीं, लेकिन 2 करोड़ 16 लाख रुपया जो बकाया है वो बताता है कि बहुत बड़ी रकम है, जनता का ये पैसा है, और उनको एक जनप्रतिनिधि जो होता है वो दूसरे के ऊपर अपना प्रतिबिंब डालता है। जनप्रतिनिधि जो होता है उसे देख के लोग राह बना देंगे। नेता किसको कहा जाता है? जो लोगों को मार्गदर्शन दे। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज जो हम लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष को भी इसमें बताने की आवश्यकता है, क्योंकि उनके पिताजी 2 टर्म तक कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। और ये जब बात आई तो बड़ी ही हमारे दमन और दीव के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी भी एक खबर है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ पर बताई कि कोई 2 व्यक्तियों ने उनके कुछ व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई। अल्केम इंडस्ट्रीज में कोई 2 व्यक्ति केतन पटेल के नाम पर जाकर वहां पर हफ्ता वसूली की बात करते हैं, उसके लिए पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए वहां पर जो एफआईआर दर्ज की उसकी पूरी जांच होने की आवश्यकता है। मैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आज प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महोदय, हमारे महामंत्री जी, जिला के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ बीएम भाई, तुषार भाई सब साथ है, इनके समक्ष में आपको याद कहना चाहता हूँ। बारंबार हमने देखा कई अखबारों में कई जगह पर लाल कार्ड, पीले कार्ड, काले कार्ड, ये सेवा वो सेवा करके जो आजकल पेपर में आ रहा है, तो क्या ये सेवा ऐसे ही लूट के पैसे से की जा रही है? केतन पटेल, केतन एनजीओ के नाम से जो भी ऐसा जो कार्य हो रहा है, जनता के भले हित में हो, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसका खुला यहाँ पर अखबार के जरिए जनता तक ये भी मालूम पड़ना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन सी इंडस्ट्री से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसका लोगों को उसकी जानकारी होना आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि आज लोगों को ये पता नहीं हो पा रहा है कि ये जो आज सेवाएं हो रही है, आज कांग्रेस के नाम पे सेवा ना हो के एनजीओ के नाम पे जो सेवा हो रही है, जो बैकडोर एंट्री करने की जो कांग्रेस पार्टी आज जो पूरी चाल चल रही है, उसको हम आने वाले दिनों में बिल्कुल उजागर करेंगे। कुछ ही दिनों के अंदर उसके लिए भी हम वापस प्रेस वार्ता हम करेंगे। लेकिन जो अल्केम के कुछ लोग ने उनके ऊपर जो कंप्लेंट की, उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक पुलिस डिपार्टमेंट जांच करे। उसी के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज में भी हमें ये मालूम पड़ा है कि वेलनोन इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा कुछ घपला चल रहा था। वेलनोन के लोगों ने भी कुछ हमारे मैजिस्ट्रेट के सामने कुछ 164 में वहां पर कुछ अपनी जो जुबानी वहां पर जो स्टेटमेंट जो देनी है वो दी गई है, वो एक खुफिया स्टेटमेंट होता है, वो अभी तक वो स्टेटमेंट बाहर नहीं हुए। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वेलनोन इंडस्ट्रीज के साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा। डाबेन में ऐसे जो भी चल रहा है उसका मैं प्रशासक माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो खौफ आज जो इंडस्ट्रीज में था उस खौफ को मिटाने के लिए दमन दीव प्रशासन आज सतर्क है। उन्होंने जो वादा किया था प्लास्ट इंडिया में जब वो पहली बार आए थे तब मीरासोल में कि वो ऐसा यहाँ पर दमन दीव में वातावरण बनाएंगे जिसमें कि उद्योगपतियों को कोई किसी का डर नहीं रहेगा, वो इजीली यहाँ पर धंधा कर पाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जैसे अल्केम है, जैसे वेलनोन है, ऐसी सारी बातों के ऊपर जहाँ पर कहीं ना कहीं कटघरे में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का बिल्कुल मिला जुला है, उनको इस बात की स्पष्टीकरण करनी होगी। उनको ये बताना होगा ये केतन एनजीओ में जो फंड आ रहा है कहाँ से आ रहा है। उनके साथ साथ ये रमनीत लाल मेडिकल रिलीफ ट्रस्ट जो है वो क्या है, उसका भी कहाँ से आया, उसकी भी पूरी जानकारी आने वाले दिनों में प्रेस के माध्यम से दमन दीव के लोगों को बिल्कुल बतानी चाहिए। दमन दीव प्रशासन भी इसके ऊपर कार्रवाई करे, उसकी जांच करे ये पैसा कहाँ से ला रहे। मैं जो उनके लाभार्थी उनको भी अपील करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा कई सारी योजनाएं लागू की गई है। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहाँ पर 3 रुपये केजी में हमको चावल मिलता है, 2 रुपये में गेहूं मिलता है, अन्य सारे चीजें हमें मिलती है, उसकी सुविधा भारत सरकार दे रही है, गारंटी के रूप में दे रही है। और यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी पिछले 2 दरवाजे से जो जनता के बीच में घुसना चाहती है उससे सतर्क रहे, क्योंकि ये पैसा कौन से माध्यम से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। तो आपके माध्यम से पुनः एक बार मैं यही कहना चाहूंगा कि केतन पटेल कांग्रेस अध्यक्ष एनजीओ के बारे में, रमनीत लाल मेडिकल ट्रस्ट के बारे में, और जो ये 2 करोड़ 16 लाख रुपए का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बकाया है उसके बारे में स्पष्टीकरण दमन दीव की जनता को दे। सिंध प्रदेश दमन में इतिहास में पहली बार निकाली गई थी भगवान जगन्नाथ की विशाल रथ यात्रा। हिंदू धर्म में मनाने वाला पर्व और खासकर कच्छी लोग नूतन वर्ष के तौर पर मनाते पर्व का दिन आ गया। इस साल आषाढ़ी बीज को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। तो इतिहास में पहली बार संघ प्रदेश दमन में आषाढ़ी बीज को मनाया गया। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई थी। कहा जाता है कि ससुराल से मायका में आई बहन सुभद्रा को घूमने की इच्छा होती है और भाई कृष्ण बलराम बहन को नगर में घुमाने के लिए लेके जाते हैं। तो दमन में भी भगवान
तो दमन में भी भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराम की नगर यात्रा निकाली गई थी। इस अवसर पर सत्यनारायण मंदिर दमन से रथ यात्रा निकाली गई थी। ये आयोजन दमन के हिंदुओं के तमाम समाजों के प्रमुख द्वारा की गई थी। रथ यात्रा के अवसर पर दमन के हरेक समुदाय के लोगों ने भाग लेकर धन्यता प्राप्त की थी। रथ यात्रा को नानी दमन तीनबत्ती स्थित जलाराम मंदिर पर समाप्त किया गया था, जहां भक्तों के लिए महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया था। सभी भाविक भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लेकर धन्यता प्राप्त की थी। रथ यात्रा पूरे दमन में घूमी थी। રોજ અષાઢી બીજના પાવન દિને શ્રી સત્યનારાયણ ભગવાન મંદિરથી દમણની પ્રથમ શ્રી જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રાનું આયોજન હિન્દુ જાગરણ મંચ દમણ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। આ આયોજનમાં આશરે 5000 જેટલા ભક્તો ઉમટ્યા હતા અને ભગવાન શ્રી જગન્નાથના દમણના નગર ભવન ભ્રમણમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આજનું આયોજન દમણની દ્રષ્ટિએ એક ઐતિહાસિક આયોજન છે। આ રથયાત્રા એક ઐતિહાસિક રથયાત્રા બની શકશે, કેમ કે આ રથયાત્રાનું જે સંચાલન થયું હતું તેનું સ્ટાર્ટિંગ દમણના સર્વ સમાજના પ્રમુખો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। पार्टी कोटलाव में प्राथमिक स्कूल के सामने सालों से रहते एक भिखारी की हुई मौत। पार्टी पास कोटलाव में प्राथमिक स्कूल के सामने पिछले कितने सालों से रहते प्रभु नामक भिखारी के, जो भीख मांगकर अपना पेट भरता था, वो भिखारी की मौत हुई है। ये भिखारी के मौत के समाचार प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपाल ने कोटलाव गांव की सरपंच सुमित्राबेन मोहन भाई हड़पति को जानकारी देते वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे। गांव के अग्रणी बाबूभाई भंडारी, सरपंच पारडी और तहसील पंचायत सदस्य राजेश भाई नायक ने पुलिस को जानकारी दी थी। पारडी पुलिस और कर्मचारी तत्काल कोटलाव प्राथमिक स्कूल पास आ पहुंचे थे। बाद में नटवर सिंह ने भिखारी के मृतदेह को उठाकर टेम्पो तक ले जाया गया था। कोटलाव गांव की महिला सरपंच सुमित्राबेन खुद भिखारी के मृतदेह को उठाने में मदद की थी और टेम्पो में रखा गया था। मृतदेह को पारडी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया था। पीएसआई सोलंकी ने तमाम कार्यवाही कर तत्काल भिखारी के मृतदेह को कब्जे कर पारडी नगर पालिका के सैनिटरी विभाग के पंकज गरासिया की टीम ने भैंसलापार नदी पास लाश को दफना दिया गया है। अपना यहाँ स्टेशन पर स्कूल पास एक भिखारी बिचारो बता दिवस आम सारो ज હતો, पर अत्यारे काले खलास થઈ ગયેલો તો અમને ખબર પડી શૈલેષભાઈના પપ્પાએ, એટલે અમે એને આવીને ઉચકી લીધો, ટેમ્પામાં ભર્યો છે, હોસ્પિટલમાં લઈ જાય સરકારીમાં। संघ प्रदेश दादरनगर हवेली सिलवासा के बाविशा फलिया जलाराम मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई थी। संघ प्रदेश दादरानगर हवेली सिलवासा में शनिवार के दिन 9वीं साल के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलराज नगर यात्रा निकली थी। भरपूर बरसते बारिश में रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ ट्रस्ट के प्रमुख अशोक भाई पटेल एवं उप प्रमुख आशीष भाई ठक्कर के हाथों पूजा अर्चना आरती कर ढोल नगाड़े के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त जुड़े थे। ये यात्रा जलाराम मंदिर भाविशा फलिया जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा सुबह 10 बजे रथ यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा भाविशा फलिया से निकलकर किलवनी नाका, झंडा चौक, आमली गायत्री मंदिर होकर विविध क्षेत्रों में से पसार होने के बाद नरोली रोड गुलमोहर हॉल में आके रुकी थी। गुलमोहर हॉल में रविवार की शाम को महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। दादरानगर हवेली भाजपा सांसद नट्टूभाई पटेल ने भगवान जगन्नाथ यात्रा में जुड़े तमाम भक्तों को शुभकामनाएं दी थी। आयोजक जलाराम मंदिर भाविशा फलिया जगन्नाथ सेवा समिति के आशीष ठक्कर और अशोक पटेल द्वारा रथ यात्रा का संचालन किया गया था। भगवान जगन्नाथ की सिलवासा नगरी में 9वीं रथ यात्रा है और भगवान सिलवासा
सिलवासा आर्मी क्लब के 14 युवा बाइक राइडर्स भाईचारों का संदेश लेकर श्रीनगर एवं लेह लद्दाख के सफर पर हुए रवाना। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में राइट ऑफ यूनिटी के तहत आर्मी क्लब ऑफ सिलवासा ने अपने ग्रुप के साथ बाइक राइडर्स पर निकले हैं। मानसून का मौसम और बाइक से लंबे सफर कुछ अपने आप में बहुत साहसिक कदम माना जाएगा। टीम लीडर प्रणव गिरीश और विशाल ने इस संबंध में जानकारी दी कि बाइक से हम लोग लेह लद्दाख श्रीनगर के सफर पर निकल रहे हैं। हमारी आर्मी क्लब ऑफ सिलवासा के बाइकर्स ऐसे कई राज्यों और जिलों में सफर कर चुके हैं, जैसे माउंट आबू, भुज, गोवा, महाबलेश्वर जैसे स्थानों पर जा चुके हैं। इसके द्वारा हम लोग देश के विभिन्न राज्यों में एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। इस बार करीब 14 लोग लेह लद्दाख की पहाड़ियों में भाईचारे का संदेश देकर पहुंच रहे हैं, जिसमें 9 जितनी मोटर बाइक एवं एक 4 व्हीलर गाड़ी साथ में जा रही है। रॉयल हिंद फील्ड बाइकर्स ने हमें बताया कि अगर मौसम अच्छा रहा तो लेह लद्दाख तक हम करीब 4 दिन में पहुंचने की आशा रखते हैं। मैं तो कहूँगा हम लोग काफ़ी राइड मारी है आज तक। हमारा 5 साल से ग्रुप चल रहा है, बहुत सारी राइड मारी है। और ये जो राइडर जो थे इनका ये समझो चारों धाम जैसा है कि जो लद्दाख जाके आता है उसके बाद वो राइडर माना जाता है पक्का। तो उसके हिसाब से हम लोग ने सब काफ़ी टाइम से सोचा था कि एक बार लद्दाख करना है, तो हमने ये साल मौसम वहाँ पे ऐसा है कि हम लोग जा सकते हैं, तो इसीलिए राइड पे जा रहे हैं सब लोग। क्या राइड पे जाते हैं, कोई इवेंट रहता है तो वहाँ पे जो राइडर्स ग्रुप आते हैं वो हम लोग को ये लोगो देते हैं उनका। और ये हर राइड पे राइडर अपने जैकेट पे वो उसको दिखाता है, लगाता है। इसमें इसके पहले हमने काफ़ी राइड मारी हुई है। बारिश मौसम सिर्फ थोड़ा सा केयर करना है रोड का, वैसे गाड़ी का ग्रिप इतना अच्छा मिलता है जो बाकी टाइम में नहीं मिलता है। बारिश इतना प्रॉब्लम नहीं करता है और थोड़ा कंट्रोल करना है, एक यूनिटी के साथ चलना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसमें। यात्रा किए हम लोग, आबू गए, महाबलेश्वर गए, कच्छ भुज जाके आए, गोवा जाके आए, और यहाँ का एरिया तो हमने कोई छोड़ा ही नहीं। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है कि हम लोग आर्मी क्लब सिलवासा गया नहीं है। ये हमारा जो ग्रुप है आर्मी क्लब ऑफ सिलवासा एक राइड फॉर यूनिटी कर रहे हैं। आज अभी यहाँ से प्रस्थान करके सीधा जाएंगे वलसाड़, वलसाड़ से आगे फिर बाद में ये अजमेर हॉल्ट मारेंगे। आज का दिन अजमेर तक है उनका, और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ से लेह लद्दाख जा रहे हैं। श्रीनगर होके लेह लद्दाख जा रहे हैं। ये अभी उनका पूरा आपस का है कि ये कैसे हॉल्ट मारते हैं, कहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा रहेगा सिचुएशन, उसके हिसाब से आराम से 3 से 4 दिन में वो लेह लद्दाख पहुँच जाएंगे। हम जो आर्मी क्लब ऑफ सिलवासा है पहली बार ये इतना बड़ा राइड मारने जा रहा है, एक मैसेज देने के लिए कि एक यूनिटी जो होती है, एक ग्रुप होता है, वो उसको मजबूत करके दिखाना है सिलवासा वालों को भी कि आर्मी क्लब ऑफ सिलवासा में भी कुछ दम है। भावना से भरा हुआ वापी चला विस्तार में ब्रह्मदेव मंदिर हर बारिश के मौसम में डूब जाता हो। भक्तों द्वारा इस समस्या पर तंत्र द्वारा ध्यान दिया जाए, ऐसी मांग उठी है। वापी चला विस्तार में आदिवासी प्राचीन ब्रह्मदेव मंदिर आया हुआ है, जिसमें बारिश का पानी भर जाता है और मंदिर डूब जाता है, जिसमें ये प्राचीन समय में ही छोटा मंदिर बनाया गया था, परंतु बारिश के समय पर मंदिर में पानी भर जाने से लोगों को दर्शन के लिए तकलीफ होती है। ये मंदिर में सदियों से गांव के स्थानिकों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है, फिर भी ये मंदिर का कोई भी देखभाल नहीं होते। मंदिर के अंदर पानी भर जाता है। ये मंदिर के आसपास में सोसाइटी और ग्राम पंचायत आए हुए हैं, उसके बावजूद ये मंदिर में पानी के निकाल के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण मंदिर डूब गया था, तो तंत्र इस पर ध्यान दे वो जरूरी बन रहा है। वापी जीआईडीसी में हर्ष एंटरप्राइज नाम की कंपनी के अकाउंट कर्मचारी मिक्सचर मशीन में गिरते मशीन का पट्टा शरीर में घुस जाते हुई करुण मौत। वापी जीआईडीसी में आए हर्ष एंटरप्राइज में पिछले 6 सालों से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में काम करते कुंदन शाह उम्र वर्ष 22 साल रहवासी झारखंड के गोड़ा जिले का रहने वाला था। दोपहर के 3 बजे कंपनी में काम करते दौरान ऊपर से नीचे गिरते मिक्सचर मशीन में गिर जाने से उसके शरीर में मिक्सचर का पट्टा घुस जाते उसकी घटनास्थल पर करुण मौत हुई थी। कामदारों को जानकारी मिलते कंपनी संचालक को जानकारी दी गई थी। उसको पास के हरिया अस्पताल में ले जाया गया था। वहां फर्ज पर के डॉक्टरों ने उपचार करते मृत जाहिर किया गया था। इस घटना में कंपनी की बेदरकारी बाहर आई थी। घटना की जानकारी पुलिस को करते घटनास्थल पर उद्योग नगर के पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। बाद में अकस्मात का गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही हाथ धरी गई थी। भटार में आई हुई भगवान जी डाहियाबाई हाई स्कूल में
वापी जेसीआई द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। जेसीआई वापी के प्रमुख जेसी तिमिर पटेल के नेतृत्व में स्वतंत्र सेनानी भगवानजी डाहियाभाई देसाई हाई स्कूल वटार में पौधारोपण के साथ पौधों को दत्तक लेने का कार्यक्रम अनोखा प्रयास हाथ धरा गया है। जेसीआई वापी इस साल 25वां साल मना रहा है, तो वटार में 20 जितने पौधों को लगाया गया और स्कूल द्वारा इन पौधों को दत्तक लिया गया। इस अवसर पर स्कूल के ट्रस्टी नानूभाई देसाई, आचार्य रक्षाबेन देसाई, इको क्लब के प्रमुख कामिनीबेन द्वारा जेसीआई वापी का इस अवसर पर आभार व्यक्त किया गया। समग्र कार्यक्रम का संचालन जेसी आशीष भंडारी द्वारा किया गया था। आज जेसीआई वापी स्वातंत्र्य सेनानी भगवानजीभाई डाहियाभाई देसाई स्कूल्सनी अंदर अमे लोग आव्या छे। अहींया अमे लोग 20 ट्री अडोप्शन करावी रह्या छे। ट्री प्लांटेशन नहीं पण ट्री अडोप्शन एटला माटे अमे लोग कर्या छे। एवुं मानीए छे के समाजना दरेक व्यक्ति मात्र 5 झाड़ पण उछेरवानो साहस करे तो एक हरियाળી कांतरी लावी सकीए छे आपणे अने पर्यावरण पर एक मोटी असर पाड़ी सकीए छे। आ पर्पजथी जे अमे लोग ट्री अडोप्शन पर वधारे ध्यान आपी रह्या छे। आज स्वतंत्र भगवानजीभाई देसाई स्कूलनी अंदर अमे लोग 20 झाड़ोनुं वृक्षारोपण करी रह्या छे, पण एनी साथे साथे स्कूल तरफथी अमने आश्वासन आपवामां आव्युं छे के ए 20 झाड़ ने ए लोकोए पोते अडोप्ट करी रह्या छे अने ए झाड़ने केळवવાની जवाबदारी ए लोकोए जाते लीधी छे। आना उपरांत पण जेसीआई वापी घणा बधा ट्री अडोप्शन पर काम करी रह्यो छे। प्रदूषण मुक्ति पर अवॉइड प्लास्टिक पर घणा बधा कार्यों करी रह्यो छे। पार्टी एजुकेशन सोसायटी द्वारा निर्मलाबेन किशोरभाई देसाई साइंस कॉलेज का हुआ शुभारंभ। पार्टी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा शनिवार को निर्मलाबेन किशोरभाई देसाई साइंस कॉलेज का शुभारंभ किया गया था। कॉलेज के नवनिर्मित केमिस्ट्री और फिजिक्स की अद्यतन लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया था। बाद में तैयार कॉलेज, क्लासरूम और ऑफिस का उद्घाटन मेहमानों द्वारा किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई थी। मुख्यदाता किशोरभाई देसाई द्वारा इस संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति को इसके लिए दान देने की जाहिरात की गई थी। कॉलेज के प्रथम प्रवेश के विद्यार्थियों को वेलकम किट द्वारा सम्मानित किया गया था। कॉलेज के डायरेक्टर दीपेश शाह द्वारा कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया और कॉलेज की विविध कार्यवाही के बारे में मार्गदर्शन दिया गया था। इस अवसर पर पार्टी एजुकेशन सोसाइटी रतन शाह दमणवाला, तेहमनीबेन दमणवाला, प्रमुख जवाहरभाई देसाई, उपप्रमुख हेमंतभाई देसाई, धर्मेंद्र शाह, देवांग भट्ट और अन्य सभ्य उपस्थित रहे थे। समग्र कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर के.बी. परमार द्वारा किया गया था और अंत में आभार विधि पार्टी कॉलेज के आचार्य हर्षावती पटेल द्वारा किया गया था। जो उद्घाटन थयुं छे एनके देसाई मारा वाइफना नामने एक कॉलेज है अने भविष्य में भी आ कॉलेज माटे जे कई मदद की जरूर पड़े ए अमरु कुटुंब और ट्रस्ट पूरी पाड़शे। सायंस कॉलेज है एमां फिजिक्स और केमिस्ट्री बे विभाग है। लेबोरेटरी ने बधु तैयार थी गयुं खातर मळी शके कि आपणे अहींया सायंस कॉलेज हती नहीं अने अहींयाना विद्यार्थीओए बहार जवुं पड़े तेना बदले स्थानिक में केमिस्ट्री और फिजिक्सना कोर्स अमे दाखल करेला छे अने ए केमिस्ट ने फिजिक्स कोर्स में बधाने दाखल करवामां आवशे अने सायंस में ए लोको आगळ वधी शके એટલા માટેના આ પ્રયત્ન છે। આવનાર ભવિષ્યમાં શું છે આ કોલેજ? આવનાર ભવિષ્યમાં અમે આજુબાજુના વિસ્તારમાં જે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલો શરૂ થઈ છે તો તે લોકોના માટે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કોમર્સનો કોર્સ ગ્રેજ્યુએશન માટે કરવા માટેની કોઈ કોલેજ નથી અહીંયા। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के चिखली गांव में हुआ मॉनसून फुटबॉल टूर्नामेंट। पूर्व सांसद मोहन डेलकर रहे उपस्थित। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के सुरंगी पटेलात के चिखली गांव में आदिवासी विकास संगठन के बैनर तले मॉनसून फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मॉनसून फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन पूर्व सांसद मोहन डेलकर एवं उनकी धर्मपत्नी कलाबहन एम डेलकर के हाथों किया गया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मोहन डेलकर एवं कलाबेन डेलकर ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए 500 पौधे का रोपण भी करवाया। मॉनसून फुटबॉल टूर्नामेंट उद्घाटन के अवसर पर मोहन डेलकर ने बताया कि आज पूरे विश्व में फुटबॉल का फीवर चल रहा है। दादरा नगर हवेली में भी फुटबॉल का खेल धीरे धीरे लोगों का प्रिय खेल बनता जा रहा है।
बारिश के मौसम में मानसून फुटबॉल का आयोजन कर ग्रामीण इलाके के युवाओं ने अपने फिटनेस का उत्तम उदाहरण पेश किया है। मानसून फुटबॉल टूर्नामेंट में 40 टीमों ने भाग लिया है। इस टूर्नामेंट में फाइनल जीतने वाली टीम को आदिवासी विकास संगठन की ओर से नकद 25,000 रुपये और उप विजेता टीम को 15,000 नकद रुपये देकर एवं ट्रॉफी भी दी जाएगी। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रमन भाई काकवा, उपाध्यक्ष महेश भाई गावित, डॉक्टर टीपी चौहान, कमलेश पटेल, सुरेश कोटियान, जिगीशाबेन पटेल एवं जिला पंचायत सदस्य, सरपंच सहित आदिवासी विकास संगठन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। समाचारों के अंत में आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। दमन में पूर्व सांसद रह चुके दयाभाई पटेल का वीज बिल 2 करोड़ जितना भरना बाकी हो, भाजपा ने इस मामले को लेकर पत्रकार परिषद का किया था आयोजन। संघ प्रदेश दमन में इतिहास में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा का किया गया था भव्य आयोजन। पाडी कोटलाव में बरसों से रहते एक अनजाने वृद्ध की हुई मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।